and welcome to Manika IAS. Today we are going to see the UPSC Prelims paper 2023. Okay, so the reason for this exercise is that most of the students are unaware of the type of question that is asked in UPSC, and time and again we as mentors or let's say teachers or faculty just try to highlight the same point that previous year question paper बहुत important है. So PYQs actually acts as a compass or let's say lighthouse which guides an aspirant in the journey, right? So we are going to see the prelims paper of 2023 and try to understand whether the question asked are you know सॉल्व कर सकते हैं या नहीं हम. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट. एंड हाउ डू वी प्रिपेयर. अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं, लेट्स से एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, लेट्स से कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, उससे क्वेश्चन आ भी रही है या नहीं, और अगर नहीं आ रही है तो व्हाट आर द सोर्सेज, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू डू. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पेपर. We will not discuss the questions in detail, but try to highlight the important areas from where UPSC is asking question. That is the main purpose, right? We need to focus on the areas and the parameters from where the questions are being asked. So question number 1, we see that Jhelum river passes through Wuller lake. ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है? रिवर. सेकेंड ऑप्शन में भी देखिए, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक. थर्ड स्टेटमेंट, meandering of Gandak river, ठीक है, formed Kanwar lake. Now the point is, in this question there are two major themes that is being asked. Number one, river, and another is lake. So whenever we prepare, let's say Indian physiography अगर हम पढ़ रहे हैं from 11th NCERT, उसमें rivers and drainage of India specifically एक chapter है. So whenever we prepare rivers, we have to make sure that कौन कौन से लेक्स भी उस रिवर से बन रहे हैं. वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट दैट फैक्ट. सो नंबर रिवर्स का जो चैप्टर है ड्रेनेज ऑफ इंडिया, उसमें मेजर रिवर सिस्टम्स के बारे में बताया गया. फॉर एग्जांपल इंडस रिवर सिस्टम इज देयर, फॉर एग्जांपल ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम इज देयर, फॉर एग्जांपल गंगा रिवर सिस्टम इज देयर, एंड सिमिलरली द पेनिनसुलर रिवर्स आर देयर. ठीक है, सो वेन एवर वी प्रिपेयर वी हैव टू मेक श्योर दैट वी कवर द लेक्स एज वेल, or not just lakes. To add on to this data, we also see that at times the question asks about national park, wildlife reserve, wildlife sanctuaries, biosphere reserves. ये भी जो उस रिवर्स के लेक में हैं वो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं. ठीक है, सो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. एनी हाउ द आंसर फॉर दिस given by UPSC is A. Let's move to the next question. Again, this question is very specific, to the point, precise, and it's very difficult for a student to understand and to know these facts. ठीक है, तो हम पोर्ट्स तो प्रिपेयर करते हैं. वी ऑल नो एंड वी ऑल प्रिपेयर दैट द मेजर पोर्ट्स इन इंडिया एंड द माइनर पोर्ट्स, राइट? सो मेजर एंड माइनर पोर्ट्स हम प्रिपेयर करते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दीज स्पेसिफिक डिटेल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज अ कंपनी. अब ये डिटेल हमें होनी चाहिए हमारे पास. लार्जली लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट इन इंडिया, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया. सो अगर ये डिटेल्स हमारे पास नहीं है तो इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट. सो वेन एवर वी प्रिपेयर द मेजर एंड द माइनर पोर्ट्स, वी ऑल्सो हैव टू मेक श्योर दैट in terms of its capacity to take care of the various ships it can kind of hold, and what is its capacity in terms of tons. We have to make sure that we know that. However, the answer for this question is given by UPSC as B. Only two pairs are correct. The third question, this is again a geography based question. जब हम plants और let's say vegetation के बारे में पढ़ते हैं in geography, there we get to know about these trees. For example, teak, mahua, jackfruit. Jackfruit is nothing but in Hindi we called is कटहल. ठीक है, सो जब भी हम ये क्वेश्चन देखते हैं तो हमें ये भी देखना पड़ेगा विच ऑफ देम आर डेसिडियस. वेरियस क्लासिफिकेशंस आर देयर, जबकि डेसिडियस इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट कवरिंग एरिया है. द द द काइंड ऑफ ट्रीज दैट आर फाउंड इन इंडिया आर मेनली डेसिडियस. नाउ इसमें से कौन कौन से हैं? तो द आंसर गिवन बाय यूपीएससी इज ओनली टू. ठीक है,
जैसे एवरग्रीन में रोजवुड, इबोनी, महागोनी, ठीक है, तो ये एवरग्रीन में आते हैं। अब उसके बाद डेसिडियस है, उसके बाद फिर ट्रॉपिकल टेम्परेट है, एल्पाइन फॉरेस्ट हैं। अगेन वी हैव अ क्लासिफिकेशन नोन एज डेजर्ट्स, राइट। डेजर्ट में जैसे कि वी हैव थॉर्नी प्लांट्स, तो अब उसकी भी हमें कैटेगराइजेशन जाननी पड़ेगी वेन एवर वी आर प्रिपेयरिंग। तो एक होलसम प्रिपरेशन कैसे की जाए विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस ओनली, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू सी। Here we see about 3/4 of the world's cobalt, a metal required for manufacture of batteries for electric motor vehicles, is produced by. Now this is a very specific question. जब तक हमें पता नहीं होगा ये कोबाल्ट कहाँ मिलता है, अब ये आएगा कहाँ, अगेन दिस इज अ पार्ट ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, ठीक है। इसमें हम दो प्रिपेयर करते हैं, एक इंडिया के मिनरल रिसोर्सेज, एक वर्ल्ड के। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड मिनरल रिसोर्सेज, राइट। सो अब इसका आंसर जो यूपीएससी ने दिया है, इट वाज सी, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो नो इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स, it's very important and is the trend right now, and since India is planning to curtail its ग्लोबल कार्बन फुटप्रिंट, तो इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स को एक्चुअली गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, एंड वी ऑल्सो हैव अ स्पेसिफिक स्कीम फॉर दैट, फॉर एग्जांपल फेम 1, फेम 2, ठीक है। तो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है इसको, बट उसके निटी ग्रिटी को भी हमें देखना है, ठीक है। जो उसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो कहाँ से फुलफिल हो रही है। फॉर एग्जांपल वी टॉक अबाउट यू नो लिथियम ट्राइंगल। लिथियम ट्राइंगल कहाँ है, इट्स इन साउथ अमेरिका। There are basically three countries associated with it, तो we have to go to those dimensions. अब सपोज अगर इंडियन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रमोट सोलर पैनल्स, राइट, तो सोलर पैनल्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, एंड वेर इज इंडिया ट्राइंग टू इम्पोर्ट इट फ्रॉम, ठीक है। सो ये एरियाज भी हमें देखने होंगे। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 6, ilmenite and rutile abundantly available in certain coastal tracts of India are rich sources of which of the following। अब ये क्वेश्चन अगेन लिंक टू जियोग्राफी ओनली, वेन एवर वी रीड वी गो थ्रू दीज थिंग्स। अब जैसे एल्यूमिनियम के हम पढ़ते हैं, कॉपर के पढ़ते हैं, आयरन के पढ़ते हैं, बट टाइटेनियम का नहीं पढ़ते हैं। तो दिस आंसर हेयर इज डी, टाइटेनियम। जो कन्वेंशनल एरियाज नहीं है ना, हमें उसको भी टच करना पड़ेगा हल्का सा। और इफ़ यू नो वेरी क्लियरली अबाउट दीज, यू कैन एलिमिनेट दीज एंड कम टू एन आंसर। बट इन एग्जामिनेशन सिनेरियो इट बिकम्स वेरी रिस्की टू go for these questions if you don't have an idea about it. Now coming to the next question, which one of the following is the best example of repeated falls in sea level giving rise to present day extensive marshy land? The answer here is Run of Kutch. Which one of the following is the best example of repeated falls in sea level giving rise to present day extensive marshy lands? अब रन ऑफ कच्छ का हमें मार्शी लैंड पता ही है, ठीक है। अब सी लेवल रिपीटेड फॉल्स इन द सी लेवल्स गिविंग राइज टू प्रेजेंट एक्सटेंसिव मार्शी लैंड, सी लेवल्स गिर रही है उसके कारण, एंड देर आर ऑल्सो प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल इन टूडेज हिंदू ओनली, दैट इज 15th of Feb, you see an article being mentioned about rise of sea level and an island actually being occupied by sea. For example, the name of that island is Sagar Island. It's in the state of West Bengal. तो दिस इज ऑल्सो एन एरिया विच यू हैव टू फॉलो। अब यहाँ पे दिया है रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल गिविंग लाइट राइज टू प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्सी लैंड्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें ये भी देखना है जो मैनग्रूव्स क्या है, माराकम सॉल्ट पैंस का है। नाउ यू जस्ट डोंट प्रिपेयर अबाउट एन आंसर, यू ऑल्सो गो थ्रू दीज ऑप्शंस। ऑप्शन इवेल्युएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इन यूपीएससी। Question number 4. India has more arable area than China. The proportion of irrigated area is more in India as compared to China. The average productivity per hectare in Indian agriculture is higher than that of China. देखो, average productivity per hectare in Indian agriculture is higher than China. This is upfront a wrong statement, ठीक है। So अब हमें पता कैसे चलेगा that ये right है या wrong है? तो इसके लिए हमें have to be very cautious and very thoughtful whenever we go through these data, ठीक है। क्रॉस कंट्री कंपैरिजन भी पूछ सकती है यूपीएससी। here the answer which UPSC has given is A, only one,
Only one statement is correct. Let's move to the next page. Which one of the following is a part of Congo Basin? Very specific questions, mapping से related है. We have released 2 mapping books before the last prelims examination. This year also we are planning to release one. Okay. तो अब जब भी आप मैपिंग करोगे आपको बहुत कॉन्शियस रहना पड़ेगा कॉन्गो बेसिन में कौन कौन से कंट्रीज इंक्लूडेड हैं. ठीक है. And same goes for other continents. For example, whenever you are doing North America or South America or let's say Asia, Australia, you have to very conscious that आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हो. Here the answer is Cameroon as given by UPSC. Consider the following statements. Amarkantak hills are at the confluence of Vindhya and Sahyadri ranges. Bhili Giranjan hills constitute the easternmost part of Satpura range. Seshachalam hills constitute the southernmost part of Western Ghats. ठीक है. नाउ दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. ठीक है. यहाँ पे कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए अमरकंटक हिल्स कहाँ हैं. ठीक है. बट द ऑप्शंस मेक इट अ बिट ट्रिकी बिकॉज यू नीड टू नो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स. हियर द आंसर गिवन बाय यूपीएससी इज डी. What do you prepare in these questions? See, the hills are given. उस क्वेश्चंस में रिवर्स थे. सो जनरली हम माउंटेन्स करते हैं एंड स्पेसिफिकली हिमालयाज. तो यूपीएससी को ये पता है दैट हिमालयाज सब प्रिपेयर करेंगे. ठीक है. बट द अदर हिल्स विच आर देयर इन लेट्स से द साउदर्न इंडिया और लेट्स से सेंट्रल इंडिया, इसको जनरली लोग फोकस नहीं करते हैं और तभी ये क्वेश्चन पूछा गया है. So try to make sure that apart from the Himalayas part, you also do the central India and the southern India hills. Moving to the next question. With reference to India's projects on connectivity, consider the following statements. East-West corridor under Golden Quadrilateral project connects Dibrugarh and Surat. Trilateral highway connects Moreh in Manipur and Chiang Mai in Thailand via Myanmar. Bangladesh, China, India, Myanmar economic corridor connects Varanasi in Uttar Pradesh with Kunming in China. अब ये ट्रांस कंट्री जो कम्युनिकेशन है उसके ऊपर ये क्वेश्चन है. ठीक है. अगेन रिलेटेड टू IR एंड सम पार्ट ऑफ इट इज ऑल्सो ज्योग्राफी. द आंसर गिवन बाय यूपीएससी इज डी ओवर हियर. Generally we prepare the highways in India, but here we see that it is related to IR plus geopolitics. So you have to prepare in these dimensions as well. यहाँ पे मेजर सिटीज जो कनेक्ट कर रहे हैं वो भी पूछा गया है. क्वेश्चन नंबर 12. Marsupials are not naturally found in India. Marsupials can thrive only in mountain grassland with no predators. अब ये दोनों स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं. अब अगर आपने पढ़ा होगा व्हाट इज अ मार्शुपियल तो you'll have an idea about it and whether it is found in India or not. Here the answer given by UPSC is C. That is statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Marsupials can thrive only in mountain grasslands with no predators. अब ये बहुत स्पेसिफिक एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है. ओनली एंड विथ नो प्रेडेटर्स. कोई भी आपको पता ही होगा द होल इकोसिस्टम फॉलोज फूड चेन और अ फूड वेब काइंड ऑफ सिस्टम. तो विथ नो प्रेडेटर्स वहीं पे सर्वाइव करेगी. दैट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, राइट. दिस इज अ वेरी एब्सोल्यूट स्टेटमेंट एंड दैट इज वर स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. अभी उस तरीके से तो आप ये एलिमिनेट कर सकते हो, ये भी और ये भी. So in that scenario, this question become easy, but you need to know whether marsupials are found in India or not. The next question is, India, despite having uranium deposits, depends on coal for most of its electricity production. Very generalized statement, and it's a correct statement, right? Uranium enriched to extent of at least 60% is required for the production of electricity. So whenever you read about science and tech और न्यूक्लियर पावर जनरेशन और लेट्स से एनर्जी इज अ चैप्टर, वहाँ हम पढ़ते हैं द एनर्जी प्रोडक्शन नीड्स टू बी रिलेटिवली हाई. ठीक है. तो इंडिया डिस्पाइट हैविंग इट्स
uranium deposit depends on coal for most of its electricity production is correct, and here it is wrong statement. So the answer is C. Moving to the next page. Again, we are this is an environment based question. Invasive species specialist groups that develops global invasive species database belongs to which of the following organization? इन्वायरमेंट में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एक टॉपिक है. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वाले टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया है. सो दिस आंसर हेयर इज IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. सो अब ये एक पूछा गया, लेट्स से अगर इवन इफ यू नो द आंसर यू रीड इट, बट यू रीड अबाउट अदर ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो. फॉर एग्जांपल UNEP, व्हाट इट डज. UNWCED, ठीक है, व्हाट इट डज. WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है. तो ये सारे बॉडीज भी हैं और इनके कौन से रिपोर्ट्स हैं, एंड व्हाट इज द मेजर डोमेन, व्हाट इज द मेजर वर्क दे डू. हमें इन पैरामीटर्स को भी देखना है, ठीक है. The next question is again related to environment. How many of the above are generally nocturnal or most active after sunset? अब nocturnal का मीनिंग आपको आना चाहिए. अगर आपको ये नहीं पता है, UPSC is actually helped you by giving the detail of it, right? So whenever you read certain areas, certain terms in environment, need to be very aware of it. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ टर्म हाइबरनेशन. अगर हाइबरनेशन आपको पता नहीं है तो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज हाइबरनेशन से रिलेटेड भी यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछ लिया है. यहाँ द ऑफिशियल आंसर गिवन बाय यूपीएससी इज ए, ओनली वन. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म वैगल डांस फॉर अदर्स of their kin to indicate direction and the distance of a source of food? This was in news, and the answer here given by UPSC, and it has also been covered in most of the newspaper. The answer is honeybees, ठीक है. They actually do a woggle dance, जिसमें वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो करते हैं और उससे उनको पता लग जाता है किस डायरेक्शन में फूड है, राइट. सो अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, सो बोथ दीज डायरेक्शंस गिव देम अ क्लू, ठीक है. और वो कितने देर पे रिपीट करके डांस करते हैं, लेट्स से अगर वो शॉर्टर पाथ कवर करते हैं या लॉन्गर पाथ कवर करते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है वो फूड कहाँ मिलता है, ठीक है. तो दिस इज हाउ दे गेट टू नो इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन स्क्विरल्स. They build nests by making burrow in the ground. They store their food materials like nuts and seeds in the ground. They are omnivorous. ठीक है. Now the answer here is given B. एक बार यूपीएससी ने एलिफेंट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा है. सो स्पीसीज स्पेसिफिक क्वेश्चंस आर आल्सो आस्क्ड, ठीक है. आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड नो अबाउट ऑल द स्पीसीज, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दे आर फ्रेमिंग द क्वेश्चंस. सो अगर एक स्पेसिफिक इंडियन स्क्विरल्स के ऊपर क्वेश्चन भी पूछा है तो ये पूछा गया दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग burrows इन द ग्राउंड. सो डू दे डू दैट. दे स्टोर देयर फूड मटेरियल्स लाइक नट्स एंड सीड्स इन द ग्राउंड. दे आर omnivorous. तो अभी आपको पता होना चाहिए omnivorous क्या है, ठीक है. अगर नहीं पता है तो यू वोंट बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन, ठीक है. ऑल्दो दिस इज ऑन अ ट्रिकियर एंड अ डिफिकल्ट साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मशरूम्स. सम मशरूम्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज. Some mushrooms have psychoactive properties. Some mushrooms have insecticidal properties. That means it kills the insects, right? Some mushrooms have bioluminescent properties. अब यहाँ sum दिया हुआ है. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन के बारे में आइडिया नहीं है, let's say none of these statements you are unaware of, but you can see, okay, some mushroom can be, can have certain properties like this. So here the answer is D. Even the UPSC gave the same answer, but the point is, even if you don't know such questions, you can easily solve it. Next question. Some microorganism can grow in environment with temperature above the boiling point of water. Some microorganism can grow in environment with temperature below the freezing point of water. Some microorganism can grow in highly acidic environment with a pH below 3. Now again the question is of sum. तो जब भी ये सम वाले स्टेटमेंट्स होते हैं ना, देयर कैन इट अनटिल अनलेस इट इज प्रूवन, राइट,
The statements are by default considered to be correct.